پر حملہ ہو تو ان کی سیکیورٹی کس آرمی آفیسر کے کنٹرول میں ہوگی؟ کیا ان سے تحقیقات پولیس آفیسر کرے گا؟ جسٹس حسن اظہر رضوی کا سپریم کورٹ میں فوجی عدالت کے کیس کے دوران استفسار۔ وکیل عزیر بھنڈاری نے جواب دیا کہ سویلینز کی حد تک کرمنل دفعات پر ٹرائل عام عدالت ہی کرے گی۔ آرڈیننس میں بہت ساری دفعات تھیں جو آرم فورسز کے حوالے سے تھیں، جبکہ جیسے حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے جہاں ملٹری کی شمولیت ہو وہاں ملٹری کورٹ شامل ہوں گے۔ فوجی تنصیبات پر حملہ ہوا، ان کی سیکیورٹی کسی عالمی افسر کے کنٹرول میں ہوگی، کیا ان سے تحقیقات پولیس افسر کرے گا؟ جیسے حسن اظہر رضوی کا سپریم کورٹ میں فوجی عدالت کیس کے دوران یہ استفسار۔ وکیل عزیر بھنڈاری نے کہا کہ سویلین کی حد تک کرمنل دفعات پر ٹرائل عام عدالت کر سکتی ہے۔ آرڈیننس میں بہت ساری دفعات تھیں جو آرم فورسز کے حوالے سے تھیں، جیسے حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے جہاں ملٹری کی شمولیت ہو وہاں پہ ملٹری کورٹ شامل ہوگا۔ دوسری جانب پنجاب حکومت نے صوبے میں قدیم فوجداری قوانین بدلنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ محکمہ داخلہ نے قانونی اصلاحات کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ کمیٹی قدیم فوجداری قوانین کو جدید اور مؤثر بنانے کے لیے سفارشات پیش کرے گی۔ کمیٹی قوانین میں ترامیم کا مسودہ تیار کرے گی۔ جرائم کی روک تھام، قانون کے مؤثر نفاذ اور امن عامہ کی بحالی سے متعلق قانونی اصلاحات لائی جائیں گی۔ پنجاب میں خصوصاً خواتین اور بچوں کے تحفظ کے حوالے سے قوانین میں ترامیم تجویز کی جائیں گی۔ کمیٹی انسداد دہشت گردی، سائبر کرائم، سائبر سیکیورٹی اور بین الصوبائی رابطے سے متعلق قوانین میں بھی ترامیم تجویز دے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈی آئی جی کامران عادل کمیٹی کے سربراہ اور عمران حسین رانجھا سیکریٹری ہوں گے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان کلائمیٹ فائنینسنگ کے لیے مذاکرات۔ گرین بجٹنگ کی ٹیگنگ، ٹریکنگ، مانیٹرنگ پر مذاکرات کا دوسرا دور آج ہوگا۔ آئی ایم ایف وفد کو وفاق اور صوبائی حکام اب تک ہونے والے اقدامات پر بریفنگ دیں گے۔ ایجنڈے میں پنجاب بلوچستان کی جانب سے بریفنگ شیڈول کی گئی، جبکہ گزشتہ روز سندھ اور خیبر پختونخوا نے کلائمیٹ اقدامات پر تفصیلات پیش کی تھیں۔ دوسری جانب آئی ایم ایف کا دوسرا وفد اقتصادی جائزے کے لیے 3 مارچ کو پاکستان آئے گا۔ وفد کے ہمراہ اقتصادی جائزہ مذاکرات 15 مارچ تک جاری رہیں گے۔ پہلے مرحلے میں تکنیکی اور دوسرے مرحلے میں پالیسی سطح کے مذاکرات ہوں گے۔ آگے بڑھیں گے۔ 77 سالوں میں ہم نے کامیابی کی 3 اڑانیں کریش کی ہیں، اب چوتھی اڑان بھر رہے ہیں جس میں کامیابیاں مل رہی ہیں۔ برآمدات، انرجی، مہنگائی اور اسٹاک سمیت کئی اشاریے بہتر ہوئے ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں کہ پاکستان میں ترقی کی کنجی سیاسی استحکام ہے۔ اس وقت ہمیں کسی سیاسی لانگ مارچ کی نہیں بلکہ اقتصادی لانگ مارچ کی ضرورت ہے۔ ہمارا نظریہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو گالی گلوچ سکھائی جائے، ہمارا نظریہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو چور ڈاکو کی تسبیح سکھائی جائے، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ نوجوانوں کو دنیا کی بہترین تعلیم دی جائے، اور ہم انشاءاللہ تعالی اڑان پاکستان کے اس منصوبے کے تحت پاکستان کے چپے چپے پر یونیورسٹیاں کھولیں گے، آئی ٹی کے ٹریننگ مرکز کھولیں گے تاکہ ہمارے نوجوان پاکستان کا اثاثہ بنے۔ جو جیلوں کے اندر ہیں ان کی چیخیں آپ سن رہے ہیں، وہ امریکہ کے پیروں میں پڑتے ہیں کہ ہمیں جان چھڑاؤ۔ آج پاکستان کو دنیا کے سامنے بدنام کیا جا رہا ہے۔ ہمیں اس ملک میں تنگی ہو، خوشحالی ہو، یہی ملک ہماری چھت ہے، یہی ملک ہمارا گھر ہے۔ ہم کبھی ملک سے باہر جا کے اپنے ملک کے خلاف بات نہیں کر سکتے۔ ایران سے تجارتی تعلقات میں توسیع اقتصادی ترقی کا نیا باب ہے۔ ایس آئی ایف سی کی معاونت کے باعث ملک کے کاروباری ماحول میں نمایاں بہتری آنے لگی ہے۔ ایران نے پاکستان کی کاروباری ویزا فیس میں کمی اور تجارت کے لیے سہولیات فراہم کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے گئے۔ دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ تجارت کو $10 ارب تک بڑھانے کا ہدف مقرر کر لیا گیا۔ آگے بڑھیں گے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں آج تیزی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ 100 انڈیکس میں ٹریڈنگ کے دوران 1500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کے بعد انڈیکس 1,15,800 سے زائد کی سطح پر دیکھا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر دیں اس حوالے سے پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں آج تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ 100 انڈیکس میں ٹریڈنگ کے دوران 1,500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔
अच्छी क्रिकेट टीम तनकीद से नहीं बल्कि अच्छे फैसलों से बनेगी। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की बस्ती लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि क्रिकेट टीम की शिकस्त पर अपने 1 करोड़ रुपए बचने का बहुत दुख है। मुस्तफ़ा कत्ल केस पर गवर्नर सिंध से बोल न्यूज़ का सवाल, गवर्नर ने जवाब दिया कि मंशियात फरोश गिरोहों की सरकोबी ज़रूरी है। ये देखना होगा कि किसकी सरपरस्ती में ये मंशियात का नेटवर्क चलाया जा रहा था। और निज़ाम तालीम में बेहतरी के लिए सिंध हुकूमत कोशिशें कर रही है। 2.5 साल कबल अरोड़ यूनिवर्सिटी का क़याम एक ख्वाब था जो कि हकीकत में तब्दील हो रहा है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा कि हुकूमत तलबा को साजगार माहौल फराहम करने के लिए पुराज़म है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क़यादत में सिंध हुकूमत ने तालीम को अवलीन तरजीह दी है। वज़ीर आला सिंध ने तलबा को मुखातिब करते हुए कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल आपके हाथों में है। कराची से नफरत और तासुब की सियासत खत्म हो चुकी। कुछ लोग बिला वजह तनकीद करते हैं, भूल जाते हैं कि ये शहर सबका है। मेयर कराची मुर्तज़ा वाहब कहते हैं कि अपोजिशन जमातों का प्रेशर होता तो उनको पसीना आ जाता है। एहतजाज करना हक है, लेकिन जलाओ घिराव पर कानून हरकत में आएगा। कुछ लोग खुद मौक़िफ़ रखते हैं और मजबूती से बात करते हैं। तेज से तनकीद होती है, तेज से तरक्की होती है। जो लोग तनकीद पर फोकस करना चाहते हैं वो तनकीद के ऊपर फोकस कर सकते हैं, जो तरक्की के ऊपर फोकस करना चाहते हैं वो तरक्की के ऊपर फोकस कर सकते हैं। मेरे लिए कोई स्पेशल लिफ्ट नहीं बनती। हमारे शुकूक व शुबात ये हैं कि हमारे हिस्से का जो पानी हमें मिलना चाहिए वो 1991 के अकॉर्ड के तहत नहीं मिल पा रहा। आप वफाकी हुकूमत हमें सेटिस्फाई कर दे, हमारी आवाम को सेटिस्फाई कर दे, हमारी हुकूमत को सेटिस्फाई कर दे कि नहीं उस अकॉर्ड के मुताबिक आपको पानी बिल्कुल मिल रहा है, आपके पानी की कोई शॉर्टफॉल नहीं है, तो मैं समझता हूँ ये मामला एहसन तरीके से हल हो सकता है। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि मैं आपको पानी प्रोवाइड करने के लिए अपना पानी ख़त्म कर दूँ। हाई प्रोफाइल केस की बात करेंगे। मुस्तफ़ा कत्ल केस की तफ्तीश में इंकशाफात का सिलसिला जारी है। अरमगान के तशद्दुद से ज़ख्मी होने वाली लड़की जोमा ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया है। बताया कि अरमगान ने लैपटॉप के बहाने कमरे में बुलवाया और तशद्दुद का निशाना बनाया। दूसरी जानिब मुल्ज़िमान का इंटरनेशनल ड्रग चेन से मंशियात की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस होने का भी इंकशाफ हुआ है। गिरफ्तार मुल्ज़िम साहिर हसन ने बड़े बिजनेसमैन, सियासतदानों और दीगर अहम शख्सियात के नामों के अलावा 12 से ज़ायद क्लाइंट्स के नाम भी पुलिस को दे दिए हैं। मुस्तफ़ा कत्ल केस की तफ्तीश में इंकिशाफात, अरमगान के तशद्दुद से जख्मी होने वाली लड़की जुमा भी सामने आ गई। पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। जुमा ने बताया कि अरमगान ने लैपटॉप के बहाने कमरे में बुलवाया और तशद्दुद का निशाना बनाया। कहा कि कॉल सेंटर के बारे में मुखबरी की है। तशद्दुद से खून बहने लगा। शिराज ने अरमगान को मारने से रोका। नेशनल मेडिकल में डर की वजह से इंतजामिया को झूठी रिपोर्ट लिखवाई। मुल्ज़िमान का इंटरनेशनल ड्रग चेन से मंशियात की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है। गिरफ्तार मुल्ज़िम साहिर हसन ने बड़े बिजनेसमैन, सियासतदानों और दीगर अहम शख्सियात के नामों के अलावा 12 से ज़ायद क्लाइंट्स के नाम भी पुलिस को बताए हैं। तफ्तीशी हुक्काम ने साहिर के कॉल डेटा में अरमगान के साथ राब्तों का इंकशाफ किया। साहिर हसन ने बताया कि वो अरमगान के जरिए मुस्तफ़ा से मिला था। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम की तहकीकात का आगाज कर दिया है। अहम खबर शामिल करें। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल के ATC के फैसले के खिलाफ महकमा प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर फैसला जारी, जबकि मुल्ज़िम अरमगान को सिंध हाई कोर्ट में पेश किया गया। तहरीरी हुक्मनामे में ये बताया गया कि इसके तफ्तीशी अफसर ने ATC मुनाज़िम जज को तमाम शवाहिद पेश किए हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का ये मामला ATC के फैसले के खिलाफ महकमा प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया गया। मुल्ज़िम अरमगान को सिंध हाई कोर्ट में पेश किया गया। केस के तफ्तीशी अफसर ने ATC मुंतजिम जज को तमाम शवाहिद पेश किए गए हैं, जबकि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का ये मामला है। ATC के फैसले के खिलाफ महकमा प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया गया। मुल्ज़िम अरमगान को सिंध हाई कोर्ट में पेश किया गया। केस के तफ्तीशी अफसर ने ATC जज को तमाम शवाहिद पेश किए। तफसीलात क्या है, मरियम हसन से जानते। जी मरियम। देखिए, बिल्कुल आज जो है मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में सिंध हाई कोर्ट में जो है वो समाअत हुई है और इंफरादी दहशतगर्दी की अदालत के फैसले के खिलाफ महकमा प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर जो है फैसला जारी किया गया है। फैसले के मुताबिक मुंतजिम जज ने जो है अदालत ने जो है मुंतजिम जज के इख्तियारात वापस लेने के लिए हुक्मनामे की कॉपी कायम मुकाम चीफ जस्टिस और सेक्रेटरी दाखिला को भेजने की हिदायत की है। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक अवामी मफाद और इंसाफ के लिए मुंतजिम जज के इख्तियारात किसी और
अदालत को दिए जाएं। तहरीरी हुक्मनामे में ये भी दर्ज किया गया है कि JIT बनाने का मुंतजिम जज का फैसला दायरे इख्तियार से तजावुज है। अदालती राय में मुंतजिम जज का पुलिस रिमांड की जगह जुडिशल रिमांड का फैसला गैर कानूनी है, जबकि मुंतजिम जज के पास ऐसे अहकाम जारी करने का इख्तियार भी नहीं है। किसी भी फरीक ने ज्वाइंट इंटेरोगेशन टीम बनाने की दरख्वास्त नहीं की। तहरीरी हुक्मनामे में ये भी कहा गया है कि मेडिकल रिपोर्ट में तशद्दुद के शवाहिद के बाद कानून के मुताबिक तफसीली अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती थी। अलबत्ता मजिस्ट्रेट और मुंतजिम जजेस किसी भी ज़ाब्ते की सूरत में हाईकोर्ट को जवाब दे हैं। इस हवाले से बाकायदा तौर पर अदालत ने मुंतजिम जज के इख्तियारात वापस लेने के लिए हुक्मनामे की कॉपी कायम मुकाम चीफ जस्टिस और सेक्रेटरी दाखिला को भेजने की हिदायत जारी कर दी है। जी मरियम हसन अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। और कराची में ट्रैफिक हादसा रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। 24 घंटों के दौरान 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। नेटी जेटी पुल पर तेज रफ्तार ट्रॉलर ने कार सवार बाप बेटे की जान ले ली। मलीर खोखरा पार नंबर 2 स्टॉप के करीब बस ने राहगीर को कुचल डाला। नॉर्थ कराची में कार की टक्कर से एक नौजवान जाम बहक जबकि 2 जख्मी हुए। रवां साल ट्रैफिक हादसात में 132 शहरी जाम बहक और 1870 से ज़ायद शहरी जख्मी हो चुके हैं। पाबंदियां लगी, बड़े बड़े दावे हुए, लेकिन हादसात कम न हुए। कराची में मजीद 4 जानें चले गईं। गुज़िश्ता रोज नेटी जेटी पुल पर बदमस्त दौड़ते ट्रॉलर ने रक्शे और मोटरसाइकिल को टक्कर दे मारी। वाक़े में कार पुल से नीचे जा गिरी। अलमनाक हादसे में कार सवार बाप बेटा जाम बहक हो गए जबकि दूसरा बेटा जख्मी हुआ। वाक़े में रक्शे में सवार खातून जख्मी हुई। हादसे के बाद ट्रॉलर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। सुबह सवेरे मलीर खोखरा पार नंबर 2 स्टॉप के करीब बस की टक्कर से राहगीर जाम बहक हुआ। शनाख्त 50 साला अब्दुल रज़्ज़ाक के नाम से हुई। नॉर्थ कराची पावर हाउस के करीब कार की टक्कर से एक नौजवान जान से गया जबकि 2 जख्मी हुए। जाम बहक नौजवान की शनाख्त 16 साला वहाज के नाम से हुई जो शादी में शिरकत के बाद घर आ रहा था। रवां साल ट्रैफिक हादसात में 132 शहरी जान से हाथ धो बैठे हैं जबकि 1870 से ज्यादा जख्मी हुए। एक और अहम खबर, कराची में टैंकर ने एक और शहरी की जान ले ली है। लांडी में टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार जाम बहक हो गया जबकि जाम बहक शख्स की शनाख्त नहीं हो सकी है। तफसीलात खुर्रम गुलजार से जानते जी। खुर्रम, बिल्कुल ये लांडी मानसेरा कॉलोनी है। यहाँ तेज रफ्तार एक वाटर टैंकर है जो कि पानी लेकर जा रहा था। उसने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार मौके पर ही जाम बहक हुआ है। जाम बहक होने वाले मोटरसाइकिल सवार की शनाख्त नहीं हो सकी है जबकि इसकी लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मौके पर मौजूद मुश्तगिल अफराद ने वाटर टैंकर को पकड़ा लेकिन ड्राइवर जो है वो मौका पाकर मौके से फरार हो गया है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पुलिस ने वाटर टैंकर को हिरासत में लेके तहवील में लेके थाने मुंतकिल कर दिया है। साथ ही रवां साल की बात करें तो 135 अफराद अब तक रवां साल में ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक हो चुके हैं। 1800 से ज्यादा अफराद इन ट्रैफिक हादसात में जख्मी हुए हैं। और बात करें रवां साल में तो जनवरी में 68 अफराद ट्रैफिक हादसा का शिकार हुआ और फरवरी में सिर्फ 25 रोज के दौरान 66 अफराद हैं जो कि मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में अपनी जानें गंवा चुके हैं। जी अलमिया है लेकिन टैंकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। खुर्रम गुलजार अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कराची में पानी की अदम फराहमी ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से शहर में 12 मकामात पर लीकेजेस दूर करने के लिए इस वक्त काम जारी है। दूसरी जानिब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी ही की नहीं है। मुतालिक तफसीलात क्या है, कफील अहमद से जानते जी। कफील, देखिए रमज़ान की आमद में 3 से 6 वो बाकी हैं लेकिन कराची में इस वक्त पानी का बहरान जो है वो इस वक्त है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अगर हम बात कर लें जो है वो जिना टाउन की, जनेसर टाउन की, नाजराबाद, नॉर्थ नाजराबाद, लियाकताबाद, लाइन्स एरिया की हम बात कर लें जहाँ इस वक्त मौजूद भी हैं। पानी की अदम फराहमी से लोगों को बहुत मुश्किलात है। एक साथ मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे कि इस वक्त यहाँ क्या सूरत है। पानी की बड़ी मुश्किल है, या गैस की भी बड़ी मुश्किल है, बिजली की भी बड़ी मुश्किल है। पानी की लेने तुम्हें पता आउट कर रही है क्या, कहीं किसी को पानी मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। कोई लोग बाल्टियाँ लेके जा रहे हैं। बाल्टियाँ लेके जाते हैं, फिर कहाँ से भरते हैं आप लोग? वो कार अहमद आगे पीछे से भरो, ये इधर से भरो, ये अल्माश में जाओ। वहाँ 12 मकामात पे जो है वो लीकेजेस हैं जिनको दुरुस्त करने के लिए 72 घंटे का टाइम दिए गए। तो और पुरानी जो सब्जी मंडी है वहाँ 3 जगह से जो है वो लाइन डैमेज हुई थी 48 इंच की। तो उसको कहा गया था कि वो रात तक हो जाएगी, तहम वो कर दी है। यकुम मार्च तक बर्फबारी और गरज चमक के साथ बारिश, आंधी और जालाबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। शुमाली खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशें सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का बाइस बन सकती हैं। बलूचिस्तान के शुमाल, मगरबी और शुमाली इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है जबकि NDMA के मुताबिक
मूसलाधार बारिश के बाइस मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। सिंध में मौसम ज़्यादातर सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की गई है। मलका कोहिसार मरी में हल्की बारिश यकबस्ता हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। सयाह बर्फबारी के इंतजार में है। मजीद जानते हैं मरी में मौजूद आरिफ सईद से। आज सुबह से मलका कोहिसार मरी को काली गड्ढाओं ने अपनी लपेट में रखा था कि अचानक यहाँ पर अभी बारिश का सिलसिला जो हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त भी हल्की बूंदाबांदी जो है वो हो रही है। सयाह जबकि यहाँ बर्फबारी के जो शौकीन सयाह थे वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और बर्फबारी के इंतजार में थे, लेकिन बर्फबारी तो ना हो सकी। लेकिन हल्की बारिश के बायस फिर भी जो सयाह इंजॉय कर रहे हैं और यख बस्ता हवाएं भी चल रही है, जिससे सर्दी शिद्दत में भी गैर मामूली इजाफा हो चुका है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले रोज़ 2 रोज़ तक जो है वो हल्की बारिश और किसी भी वक्त बर्फबारी। सईद बहुत शुक्रिया। रुक करेंगे स्वात का। यहाँ के मैदानी इलाकों में बारिश, जबकि कालाम में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी देखने के लिए सयाहती मकामात का रुख कर रही है। हमारे नुमाइंदे वहीं पर मौजूद हैं। अनवर शाह उनसे बात करेंगे। अनवर बताएगा कैसा मौसम है और लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्वात के मरकज़ी शहर मेंगोरा में। स्वात के जितने भी इलाके हैं उसमें आज सुबह से ही बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। मेंगोरा शहर और मज़ाफ़ात में बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है, जबकि बालाई स्वात की जितनी भी सयाहती मकामात हैं मदियन, बारेन, कालाम, मलम, जब्बा, मियादम, उन इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी है। बर्फबारी देखने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद जो है वो सयाहती मकामात का रुख कर रही है। इस वक्त भी स्वात की जितनी भी सयाहती मकामात है जिसमें मलम, जब और कालाम सरफहरस्त है, वहाँ पर सयाहों की बड़ी तादाद जो है वो स्नोफॉल देखने के लिए आई हुई है। बारिश और बर्फबारी की वजह से सर्दी की शिद्दत जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। अपर स्वात डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से बर्फबारी की वजह से बंद होने की सड़कों के बंद होने के पेश नज़र भारी मशीनरी जो है वो भी मुख्तलिफ मकामात पर पहुंचा दी गई है, ताकि बर्फबारी की सूरत में जो सड़कें हैं वो खुली रहे और जितनी भी सयाह स्वात। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। खेल के मैदान से खबर। चैंपियंस ट्रॉफी ग्रुप बी का अहम मैच आज ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान रावलपिंडी में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा। मुकाबले में कामयाबी हासिल करने वाली टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। ऑस्ट्रेलिया ने अपने पहले मैच में इंग्लैंड को हराया था, जबकि जनूबी अफ्रीका की टीम अफगानिस्तान के खिलाफ फातेह रही। उधर चैंपियंस ट्रॉफी में आज जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। शायकीन क्रिकेट की पिंडी स्टेडियम आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। बात करेंगे, वहीं पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आलिजा उनसे। आलिजा बताइएगा क्या देख रहे हैं। इस वक्त रावलपिंडी में हम मौजूद हैं। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच 2 बजे शुरू होगा, लेकिन उससे कबल ही शायकीन क्रिकेट की कसीर तादाद पिंडी स्टेडियम पहुंचना शुरू हो गई है और सरप्राइजिंगली ऑस्ट्रेलिया की यहां पर बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। और मेरे साथ एक ऑस्ट्रेलिया के मद्दाह मौजूद हैं जिन्होंने अपने आप को ऑस्ट्रेलिया के रंग में रंग लिया है। इससे जानेंगे इतनी मोहब्बत है कि सब कुछ ही ऑस्ट्रेलिया। जी, मैं ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बहुत वर्ल्ड क्लास टीम है और एक चैम्पियन टीम है। 6 दफ़ा वर्ल्ड जीती हुई है, 2 दफ़ा चैम्पियन ट्रॉफी जीती हुई है और 1 दफ़ा 2020 वर्ल्ड कप जीता हुआ, 1 दफ़ा वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जीती है। एक विनिंग टीम है। अभी दोबारा से उम्मीदें वाबस्ता हैं, फिर जीतेगी इंशाल्लाह। इस दफ़ा भी जीतेगी और पाकिस्तान में इंशाल्लाह लाहौर से जीत के जाएगी। आप बताइएगा आप किसको सपोर्ट कर? जी, ऑस्ट्रेलिया के झंडे पकड़े हैं तो जाहिर सी बात है ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करेंगे। चैम्पियन टीम है और काफ़ी माशाल्लाह से पाकिस्तान में टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ है तो माशाल्लाह काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। बतौर शायकीन क्रिकेट हमारा ये काम है कि हम क्रिकेट को सपोर्ट करें और चूंकि काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान में इतना मेगा इवेंट हो रहा है, हमारे लिए यही बहुत खुशखबरी है और हम दुआ गो हैं। और अब आपको बताएं कि फिल्मों की सेंचुरी करने वाले पहले पाकिस्तानी हीरो हबीब की 9वीं बरसी। वर्सेटाइल और मंझे हुए अदाकार हबीब को गोल्डन जुबली फिल्म हीरो भी कहा जाता था। 5 दहाइयों तक उर्दू और पंजाबी फिल्मों में काम किया। उनकी फिल्मों में लख्त जिगर, आदमी, ज़हर इश्क, देवदास, ताजमहल जैसी मकबूल फिल्में शामिल हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना। विजिट कीजिए bolnews.com और रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।